Today we are going to understand we have a first lecture on history of English literature. Before proceeding further and before answering this very question, what is history of English literature? We need to understand one thing very clearly. Walaikum Assalam, Shazib Khan sir. And that is when we are talking about English literature, we need to understand what is meant by this very word literature. What is meant by literature? That is an interesting question, isn't it? And when we're talking about literature, then it is interesting to understand from where it came up, why there was need of literature. To understand English literature, obviously, we need to understand what is language. So it's clear, like without language, we cannot understand literature. So it means there is a clear relevance between language and literature. So first of all, it means we need to understand what is origin of language. Only then we can understand what is literature. And because we are talking about here English literature, so we will understand the origin of English language. To start this story, in ancient time, what was happening? In ancient time, there was no concept of boundaries. No boundaries, not at all. What was happening? Our tribe was coming, and what their tribe was doing? They were obviously having a war with another tribe, and ultimately, what was happening? Whoever was powerful, that particular tribe was ruling. So we may say in ancient time, the rule of power was there. The picture is clear. If you are powerful, you can rule a country. Still confused, still want to understand. Okay, let's make it simple. Before the birth of Christ, before the birth of, okay, yes, Mudassir, thank you. Mudassir has given us a definition in the chat box. Before Christ, no tribe was staying permanent. So permanent stay was not there. What was happening? Whoever was coming, he was having his own rule. And the same was the story with English. Same was the story with the history of English literature. So it was the power that was determining कि किसने किसकी जुबान बोलनी है. Okay, so power was there. The concept of power was there. एक इंग्लिश के एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, एक क्रिटिक है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम नाम लेते हैं माइकल फूके. ओके, सो माइकल फूके ये बात बयान करता है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं. वो क्या रिलेट करती हैं? अगर आप पावरफुल हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज हो जाएगी. आप वहां पे किसी भी कंट्री में यू कैन इम्पोज योर ओन लैंग्वेज. द स्टोरी इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, what was happening, let's try to understand this कि लैंग्वेज के अंदर और पावर के अंदर रिलेशन होता क्या है. देखिए, हम चले जाते हैं इंडिया की तरफ. what was happening in India? इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया में हमारे पास सबसे पहले लैंग्वेज जो वहां पे थी वो संस्कृत थी. अब संस्कृत लैंग्वेज थी वो किस वजह से थी? बिकॉज हिंदूज वर देयर इन पावर. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, you know, the Muslims came there in India. और मुस्लिम्स ने आके क्या किया? बिकॉज दे वर फ्रॉम पर्शिया, तो उन्होंने आके एक अपनी लैंग्वेज दी जिसको हम पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं. इज इट क्लियर?
पर्शियन लैंग्वेज हमारे पास आई। जब पर्शियन लैंग्वेज आई, सो इंडिया की जो ऑफिशियल स्टेट की लैंग्वेज थी वो हो गई पर्शियन। ओके, इसी तरह से यानी कि जो पावरफुल जब तक हिंदू थे तब तक संस्कृत थी, और जैसे ही मुस्लिम्स आए तो तब कौन सी लैंग्वेज होगी? पर्शियन। बट आफ्टर सम टाइम what happened? Then the British came there, you know, British came there. So when British were there, they gave their own language, and there was English. So हमें एक तो इसमें सारी की सारी स्टोरी समझ में आती है कि लैंग्वेज का और पावर का आपस में कोई कनेक्शन तो जरूर मौजूद है। ओके, सो लैंग्वेज और पावर का ये कनेक्शन हमें यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है जब हम बात करेंगे, सो वट एवर इज ऑन माई स्क्रीन आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन योर चैट बॉक्स, ताकि अगर जो नोट्स वहां से कॉपी करना चाहते हैं वो वहां से कॉपी कर सके। सो जब हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश जो है, इंग्लिश आई है हमारे पास वजूद में ऑब्वियसली एक कंट्री जिसका नाम इंग्लैंड था। हमने यहाँ तक इसको समझ लिया। बट व्हाट वाज हैपनिंग इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में था क्या? क्या इंग्लैंड ऐसे ही था? इंग्लैंड की कहानी को समझने से पहले हमें दो ट्राइब्स को समझना पड़ेगा। मैंने आपसे अभी ये बात तो कर दी कि दो वर्ड के इससे पहले रूल परमानेंट नहीं था, रूल वाज नॉट परमानेंट। जो भी आता था वहां पे आके अगर वो पावरफुल था तो अपनी जुबान लागू कर देता था। So same was happening here. यहाँ पे इंग्लिश में अब दो ट्राइब्स आते हैं, एक का नाम केल्ट्स है और दूसरे का नाम गेल्स है। सो हमारे पास दो मुख्तलिफ ट्राइब्स आते हैं केल्ट्स और गेल्स के नाम से। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, इससे बाद में हम डिक्रीज कर लेंगे। सो केल्ट्स और गेल्स के नाम से आते हैं। अब ये केल्ट्स और गेल्स दे वर नॉट द नेम ऑफ ए सिंगल ट्राइब, याद रखिएगा। बट व्हाट वाज हैपनिंग, एक ट्राइब के अंदर कई ट्राइब्स थे, और ये जब यहाँ वहां पे आए, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर, हाँ सबा के लिए नहीं होगा इजाज, आई रिक्वेस्टेड यू कि उन्हें बताएं कि ऑडियो ज्वाइन करें। सबा प्लीज ज्वाइन द ऑडियो ऑप्शन, until then you cannot hear us. Okay, इजाज प्लीज गाइड हर। जो हमारे ग्रुप पार्टिसिपेंट हैं, बैच 13 में हमारी पार्टिसिपेंट हैं सबा, इन्हें गाइड कीजिए। उनको लेक्चर ऑडिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की है। मैंने इस पे एक वीडियो भेजी थी बट मोस्ट प्रोबेबली वो उसे नहीं देख सके हैं, दैट इज द रीजन कि वो नहीं ज्वाइन कर सके। सो जी, दो हमारे पास ट्राइब्स हैं, एक हमारे पास केल्ट्स हैं, दूसरे हमारे पास गेल्स हैं। अब जब ये केल्ट्स और गेल्स आए, इन्होंने अपनी लैंग्वेज साथ लेके आए थे और इन्होंने ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के अंदर अब हमारे पास, इंग्लैंड तब तक सिर्फ हम इसे इंग्लैंड कह रहे हैं, वो कि इट वाज नॉट ए कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इंग्लैंड जैसा कि ये था। सो केल्ट्स और गेल्स हमारे पास दो ट्राइब आए, लेकिन उसके बाद वो वाज हैपनिंग, न्यू ट्राइब्स वर कमिंग एंड दे वर ब्रिंगिंग देयर ओन लैंग्वेज। ये सिलसिला चलता रहा, और अब हमारे पास जो है, हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन कब तक चलती है। ये सिचुएशन हमारे पास चलती रहती है, और हमारे पास जो है हर कल्चर, जो हर ट्राइब जो आता था, हर ट्राइब जब भी आता था वो दो चीजें छोड़ जाता था। एक तो अपना कल्चर छोड़ के चला जाता था, और दूसरा जो है वो अपने लिटरेचर की कुछ ना कुछ इफेक्ट्स छोड़ता था। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास, हम देखते हैं इंडिया में मुस्लिम आते हैं पर्शिया से, तो कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं, हम भी सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना कल्चर छोड़ के चले जाते हैं। सो एवरी ट्राइब वाज कमिंग देयर इन इंग्लैंड, वो अपना कल्चर छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसा होना शुरू हुआ कि इनके आने के साथ, जैसे ही वो इंग्लैंड में आते थे, इनके आने के साथ एक चीज आती थी, एक चले जाती थी। आने के साथ क्या आता था, इनकी लैंग्वेज आती थी। और लैंग्वेज किस फॉर्म में आती थी? डायलेक्ट्स की फॉर्म में। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? लैंग्वेज के चंक्स होते हैं जो कि हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं, जो कि हर जगह पे मुख्तलिफ हैं, दूसरों से हट के होते हैं। सो जी, हमारे पास जो है लैंग्वेज डायलेक्ट की फॉर्म में हमारे पास आते थे।
सो अच्छा जी, चैट बॉक्स में से इन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप सभी लिख सकें लाइक इट इज ऑडिबल, ताकि उन्हें पता चल जाए कि बाकियों को आवाज आ रही है, बिकॉज सबा इज अज्यूमिंग कि nobody is able to hear the lecture. So if you may mention in the chat box like the lecture is like the session is audible, so that वो अपने zoom को चेक कर सकें. So language हमारे पास जो हैं वो आते हैं dialects की फॉर्म में. अब यहाँ तक भी हमने इसको समझा. अब इससे कहानी थोड़ी सी आगे चलती है. अब कहानी हमारे पास ये आते हैं कि हमारे पास जो है वो एंड ऑफ एंशियंट पीरियड आ जाता है. एंशियंट पीरियड से हमारे पास मुराद है जब हम बात करेंगे फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है वो. अब होता कुछ यूं है कि इंग्लैंड के ऊपर अब एक अटैक होता है. इंग्लैंड के ऊपर एक अटैक इस दफा जो होता है रोमन्स की तरफ से ये अटैक होता है. अभी से पिक्चर थोड़ी सी तब्दील होगी. इंग्लैंड वाज अटैक्ड बाय रोमन्स, एंड रोमन्स में से आप सभी जानते हैं द वेरी फेमस नेम, दैट इज जूलियस सीजर. जूलियस सीजर अटैक करता है. जूलियस सीजर कब अटैक करता है इंग्लैंड के ऊपर? ही अटैक्ड इंग्लैंड ट्वाइस. द फर्स्ट अटैक वाज इन 54 BC and the second attack was in 52 BC. Unfortunately, for the first time, he couldn't get any success, but second time he got success. तो अब किस्सा मुख्तसर हमारे पास ये है कि इंग्लैंड के ऊपर अटैक होता है रोमन का, और रोमन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं माइकल फूको की वही बात, जिसकी पावर होती है वो अपनी लैंग्वेज को लागू करता है, जिसके ऊपर पावर होती है वही अपनी लैंग्वेज को दूसरों तक लगाता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब रोमन आते हैं. रोमन की लैंग्वेज कौन सी है जो कि उनके साथ थी? रोमन जो है वो उनके लैंग्वेज थी लैटिन. तो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को यहाँ पे इंग्लैंड के ऊपर लागू कर दिया. अब लैटिन ने इंग्लैंड के ऊपर ठीक ठाक रूल किया था. लैटिन लैंग्वेज ने 450 ईयर्स जो है वो गुजारे थे इंग्लैंड में. इन्होंने 450 साल जो है वो लैटिन लैंग्वेज ने इंग्लिश इस इंग्लैंड के ऊपर जो है वो रूल किया. सो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा मैं छोटा कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आया तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन को ज़ूम इन कर सकते हैं. ओके जी, अब हमारे पास ये समझ में कहानी यहाँ तक पहुँची कि लैटिन वाज़ इम्पोज़्ड. अच्छा, हम ये इम्पोज़्ड की टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ने इसको ऑप्ट नहीं किया था. लैटिन वाज़ इम्पोज़्ड. हमारे पास अभी लैटिन के पैरेलल जो लैंग्वेज चल रही थी वो केल्ट्स की दी हुई केल्टिक थी, जो कि स्पोकन फॉर्म में थी, और इसी तरह से गेल्स की दी हुई गैलिक लैंग्वेज थी, जो कि हमारे पास मौजूद थी स्पोकन फॉर्मेट में. ये दोनों लैंग्वेजेस हमारे पास हैं स्पोकन फॉर्मेट में, बट लैटिन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके जी, लैटिन जो है वो दैट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. अब हमारे पास यहाँ तक हमने समझा कि इंग्लैंड में किस तरह से लैटिन लैंग्वेज जो है वो आई थी. अब कहानी थोड़ी सी यहाँ से स्विच करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद हुआ क्या. लैटिन लैंग्वेज जब हजूर वाला यहाँ पे लॉन्च की गई थी, इम्पोज की गई थी इंग्लैंड के अंदर, लैटिन को एक प्लस पॉइंट भी शामिल था. लैटिन वाज हैविंग एन अपर हैंड, और ये अपर हैंड इसमें शामिल इसलिए था कि क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसमें वो बॉर्न हुआ था, वो आया था इटली के अंदर. ठीक है सर. और इसकी जो लैंग्वेज थी, जो बाइबल थी, बाइबल किस लैंग्वेज में आई थी? लैटिन के अंदर. अब इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे पास बाइबल जो आती है वो लैटिन में आती है. अब सारे का सारा यूरोप जो है, हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी उसके ऊपर क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस होता है, वो सारे का सारा यूरोप जो है वो उस लैंग्वेज को फॉलो करना शुरू कर देता है. याद रखिएगा, हम वी आर द मुस्लिम्स एंड वी हैव आवर होली बुक इन दिस अरेबिक लैंग्वेज. हम इस जुबान को समझें या ना समझें, बट हमारा रिस्पेक्ट का लेवल इसके लिए बहुत ज्यादा होता है. सो सेम वाज द केस विद लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था. अब लैटिन लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड में आई. अब इस लैंग्वेज ने, मैंने आपको बताया, 450 ईयर्स तक वहां पे रूल किया. बट दिस रूल वाज नॉट विदाउट एनी पर्पस. लैटिन लैंग्वेज ने इंग्लिश को बहुत कुछ दिया, यानी कि यहाँ तक कि आप जो अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के,
ये भी हमारे पास जो है वो लैटिन लैंग्वेज से हैं। अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सो हमें यहाँ तक समझ में आया, लैटिन लैंग्वेज ने इनको सारी की सारी चीजें दी, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज। इंग्लिश ने आहिस्ता आहिस्ता चीजें लैटिन लैंग्वेज से लेने शुरू कर दी, और हमने अब ये समझ लिया कि लैटिन लैंग्वेज जब आई, तो लैटिन लैंग्वेज ने आते ही क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया। किन चीजों को रिप्लेस कर दिया? इसने रिप्लेस कर दिया कैल्टिक को और गैलिक लैंग्वेज को। ठीक है जी, दो लैंग्वेजेस रिप्लेस हो गई जो कि ऑलरेडी वहां पे स्पोकन फॉर्म में थी, बट अब वो स्पोकन फॉर्म में भी वहां पे नहीं रही। सो ये हमारे पास दो लैंग्वेजेस जो हैं अब हमारे पास आ गई। जो कुछ मेरी स्क्रीन पे था, आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन योर चैट बॉक्स, ताकि आप में से जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, जो इसको प्रिंट करना चाहे, व्हाटएवर, आप इसे ले सकते हैं। फॉन्ट साइज दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ताकि आपको आसानी से नजर आ सके, और अब हम मूव करते हैं। अब इंग्लैंड को आपको ये समझ में आ गया कि इंग्लैंड के ऊपर लैटिन लैंग्वेज की हुकूमत है और सब बड़े मजे से चल रहा है, लेकिन ये स्टोरी ज्यादा देर तक नहीं रही, और इस दफा इंग्लैंड के ऊपर दोबारा से अटैक होता है। एंड दिस टाइम ये जो अटैक है, दैट इज फ्रॉम जर्मैनिक ट्राइब्स। ये जर्मैनिक ट्राइब्स का जैसे ही नाम हमारे जहन में आता है, हमें फील होता है कि परहैप्स दे आर फ्रॉम जर्मनी। ओके, सो दीज वर नॉट फ्रॉम जर्मनी। ये कहाँ से थे? जर्मैनिक ट्राइब जो हैं ये साउथ ईस्ट ऑफ रशिया से थे। क्लियर? साउथ ईस्ट ऑफ रशिया से हमारे पास अब तीन ट्राइब्स आते हैं जिनका नाम एंगल्स है, इसके अलावा जिनका नाम हमारे पास सैक्सन्स हैं, और इसके अलावा ज्यूट्स हैं। तो ये तीन ट्राइब्स हमारे पास अब जो हैं वो आते हैं, जो अटैक करते हैं। कहाँ से आए हैं? साउथ ईस्ट ऑफ रशिया से आए हैं, और ये अब वहां पे आए हैं। वंस अगेन, जिसके पास पावर होगी अपनी लैंग्वेज को लागू करेगा। वही रूल आपने याद रखना है, माइकल फूके के मुताबिक, whoever is powerful is going to impose his or her language. So the same is the case here. एंगल सेक्शंस और ज्यूट्स जब आए हैं तो इनके पास अपने डायलेक्ट्स थे। दे हैव देयर ओन डायलेक्ट्स, एंड यू नो व्हाट वर द नेम ऑफ देयर डायलेक्ट्स? हमारे पास एंगल्स के अपने डायलेक्ट्स थे, एंगल्स के अपने डायलेक्ट्स थे, और एंगल्स के डायलेक्ट्स जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आप जानते हैं द वेरी नेम, इट वाज एंग्लैंड। ओके, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो है वो जो नेम एंग्लैंड है, और हमारे पास जो है वो एंग्लिश है, ये भी एंगल्स के इन्फ्लुएंस की वजह से है। यस, यू आर राइट, एंगल्स, दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये नेम दिया था इंग्लैंड को। ओके, इंग्लैंड का। ओके सो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये हमें स्टोरी अब थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू होगी कि इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा। अगर आप 5th सेंचुरी से पीछे चले जाएं, 5th सेंचुरी से पहले इंग्लैंड का अपना कोई परमानेंट नेम नहीं होता था। England was not having any permanent name. So what was the name of England then? If there was no scene of permanent name, then what was the name of the England? At that time, England was known as Brittany, Brichina, Brittany, and sometimes England was known as, you know, other names were there, but with the passage of time from Britain, from Brittany, it became Great Britain. And how it happened under the influence of these very tribes and the angles. So angles जो हैं वो ये आते हैं। okay, so angles के साथ साथ हमारे पास और कौन से tribes आते हैं? Saxons and Jews हैं। ये तीनों tribes जो हैं साउथ ईस्ट ऑफ रशिया से आते हैं, और ये आके जो है वो कुछ नया देते हैं, कुछ डिफरेंट देते हैं। so अब हमारे पास जो है यहाँ तक हमें स्टोरी में समझ में आना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो लैंग्वेजेस थे, लेट मी जस्ट रिड्यूस द फॉन्ट साइज सो दैट वी मे यूज मैक्सिमम स्क्रीन। ये हमारे पास जो अभी भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के अंदर अभी भी स्कॉटलैंड ये इंग्लैंड का हिस्सा होता था, बट 18th सेंचुरी के अंदर ये अलग हुआ। इसी तरह से आयरलैंड जो है ये भी इंग्लैंड का हिस्सा होता था, लेकिन ये 20th सेंचुरी के अराउंड अबाउट जो है वो ये इसके साथ जो है वो 20th सेंचुरी में इससे सेपरेट हो गया था। इसी तरह से वेल्स भी इंग्लैंड का हिस्सा होता था, बट वेल्स भी सेपरेट हो गया समवेयर इन 18th सेंचुरी। हमने समझने की अभी कोशिश की कि अभी जो आयरलैंड, ये जो कंट्री मैंने मेंशन की, इस कंट्री के अभी भी काफी हिस्सों के अंदर कैलेटिक लैंग्वेज बोली जाती है, सिर्फ स्पोकन फॉर्म में। इज इट क्लियर? अगर हमने बात की स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड के अंदर आज भी जो लैंग्वेज बोली जाती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो बोली जाती है, गैलिक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ओके, सो लैंग्वेज जो है वो खत्म नहीं हुई, लैंग्वेज बोली जाती रही, लेकिन हमने ये बात जहन में बिठाई है कि पावर एंड लैंग्वेज दे आर रिलेटेबल, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। हम पाकिस्तान को समझने से पहले हम इंडिया को समझेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इज हैविंग 26 languages, 26 languages. And it is important to mention that the entire Europe that is having just 13 languages. Okay, that is interesting. So languages का इतना रोल होता है कि ये दो कंट्रीज की मैंने बात की है कि इनके अंदर से ये 26 की 26 लैंग्वेजेस का हमें क्यों नहीं पता, बिकॉज उनके पीछे पावर नहीं है। यूरोप के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 13 की 13 फेमस क्यों नहीं है? उनके पीछे पावर नहीं है। खुद पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 76 लैंग्वेजेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एथनोलॉग एक वेबसाइट है जो लैंग्वेजेस का रिकॉर्ड रखती है पाकिस्तान के अंदर जो है वो। बट हमें कुछ ही लैंग्वेजेस का पता है। वी नो अबाउट उर्दू, वी नो अबाउट इंग्लिश, ऑब्वियसली पश्तो, पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस आर देयर, हिंदको, ईटीसी। बट हमें सभी का नहीं पता, बिकॉज पावर इज नॉट देयर। सो जो लैंग्वेज पावर में आई उन्होंने किया, और ये लैंग्वेज की पावर इतनी पावरफुल है that sometimes it even break the countries. Do not remember what happened in 1971? They were demanding their own country, and उनकी country का name क्या है? That is Bangla. And what is the name of their country? Bangladesh. And the very reason is their language. So language का इतना रोल होता था। अब हमने ये समझने की कोशिश की इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई। सो हमने ये अब कंक्लूड किया कि हमारे पास जब एंगल्स, इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जब सेक्शंस, why it is not working, okay, Saxons और Jews के जो dialects थे, they flourished under the influence of Latin language. इन ये जब फ्लोरिश हुए तो देन हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आती है एक इंग्लिश, इंग्लिश डायलेक्ट के तौर पे हमारे पास आता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज के तौर पर हमारे पास अभी नहीं आई, इंग्लिश एक डायलेक्ट के तौर पर आता है। लैंग्वेज तो इंग्लिश जाके बनती है कहीं बाद में, कहीं बाद में। आप जानते हैं कि जब हमारे पास इसके बाद हमारे पास एज ऑफ चौसर जब आती है, चौसर की एज आती है, हम चौसर का जो डायलेक्ट था दैट वाज द मिडलैंड डायलेक्ट। चौसर भी कोई मॉडर्न इंग्लिश यूज नहीं कर रहा था। सो ये जो इंग्लिश हमारे पास थी, इट वाज नॉट ए मॉडर्न इंग्लिश, ये हमारे पास ओल्ड इंग्लिश थी, कोई इंग्लिश का पहला डायलेक्ट था। सो हमें यहाँ तक स्टोरी समझ में आई, जो भी हमारे सामने था उसे हम आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं ताकि हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ नया लिख सकें। ओके जी, सो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का वजूद असल में आता है इन रियल वर्ड्स रेनासांस के अंदर। रेनासांस जो है वो हमें आके बताता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज मौजूद है, इंग्लिश एक जुबान है। इससे पहले तो इस लैंग्वेज की डेवलपमेंट ही चलती रही थी और डेवलपमेंट होती रही थी। इवन जो चौसर है, चौसर का मिडलैंड डायलेक्ट था। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, हमने ये समझा कि 14th सेंचुरी से पहले, 14th सेंचुरी से पहले इंग्लिश के अंदर डिफरेंट डायलेक्ट जो हैं वो पाए जाते थे, डिफरेंट किस्म के डायलेक्ट होते थे।
अब ये डायलॉग क्या थे, ये कैसे काम करते थे, किस तरह से चलते थे, अब हम इन पर बात करते हैं। हमें जब हम ओल्ड इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक ही इनकी क्लेमिनेशन आती है ओल्ड इंग्लिश के अंदर, और उसका नाम है ब्यूवुल्फ, जिसके अंदर 300 1082 लाइंस और बाज जगह पे 3187 मेंशन किया जाता है कि इसके अंदर इतनी लाइंस थी ब्यूवुल्फ के अंदर। व्हाट इज दिस ब्यूवुल्फ? ये ब्यूवुल्फ क्या है? हमारे पास इंग्लिश में जो रिटन वर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आता है ओल्ड इंग्लिश में, वो हमारे पास ब्यूवुल्फ आता है। ब्यूवुल्फ क्या थी, ये क्या था? ब्यूवुल्फ अभी आप ये समझ लीजिएगा कि ब्यूवुल्फ एक एपिक का नाम है। एक एपिक किसे कहते हैं? एक ऐसी लॉन्ग स्टोरी होती है जिसके अंदर कुछ एडवेंचर मौजूद होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसा सबक जरूर मौजूद होता है, कुछ ऐसा लेसन जरूर मौजूद होता है जो कि बाद में आने वाले लोग पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। जैसे आपको पता होगा इलियड है होमर की, जैसे ओडिसी है। पाकिस्तान की बात कर लें तो मुसद्दस हाली इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। सो ये हमारे पास जो है वो एपिक है। ओके जी, एपिक। एपिक क्या थी? एक लॉन्ग पोएम थी। लेकिन अभी हम एपिक को नहीं समझना चाह रहे, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि ब्यूवुल्फ लिखी गई थी। ब्यूवुल्फ क्या थी? ब्यूवुल्फ उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। तो ब्यूवुल्फ ने इन लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। ब्यूवुल्फ को इन्होंने मॉडल के तौर पर लेना शुरू कर लिया। उन्होंने यू विल गो फॉर 3182 नसीम खान, you will go for the first option. If I were at your place, I would go for this option, okay? Because the maximum relevance is about this first option. So जी, बेवुल्फ इनके पास जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी अब हमें ये समझ में आती है कि अगर ऐसी बातें हैं तो फिर इंग्लिश में बातें करनी किसने शुरू की, इंग्लिश में लिखना किसने शुरू किया। देखिए, जब कोई जुबान वजूद में आती है तो नोबडी इज विलिंग टू राइट इन दैट लैंग्वेज। कोई भी नहीं लिखना चाहता, क्योंकि ये राइटर्स जो होते हैं, क्या उन्होंने जिंदा नहीं रहना होता? क्या उन्होंने कुछ नहीं करना होता? वो राइटर्स जो हैं वो दे आर नॉट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास सबसे पहली राइटिंग जो आती है वो हमारे पास नेम आता है बीट का। बीट का। एंड हु वाज बीट? बीट वाज अ पर्सन, द फर्स्ट राइटर। एक ऐसा राइटर था जिसने इंग्लिश में नहीं लिखा। किस जुबान में लिखा? लैटिन में। फील दिस वेरी स्टेटमेंट। बीट पहला राइटर था, बट लिख किस में रहा है? लैटिन में। एंड द वेरी रीजन इज दैट लैटिन वाज कंसीडर्ड द प्रेस्टिजियस लैंग्वेज। द पीपल, दे वर फीलिंग प्लेजर कि वो उसके अंदर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है कि लैटिन जुबान के अंदर लिखना फख्र समझा करते थे। हम तो बीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मिल्टन की बात कर लें, जिसको आप सभी और मैं सभी जानते हैं, मिल्टन, इवन मिल्टन 16th और एंड 17th सेंचुरी के अंदर भी आके, बाद में हम देखेंगे जब हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में, 16 एंड 17 सेंचुरी में उसने 24 सोनेट्स जो हैं वो लिखे हैं, और सारे के सारे लैटिन के अंदर हैं। सो लैटिन का एक इन्फ्लुएंस जरूर मौजूद था, बिकॉज लैटिन वाज कंसीडर्ड अ सुपीरियर लैंग्वेज, as it is happening in Pakistan. You know, Pakistan, if a person is communicating in English, by default, you admit this reality or not. Go into your market, go somewhere in the bazaar and talk to the people in English, and you will feel the difference. So, same situation was there. Yes, Junaid Khan is very right. लैटिन को एक अलग ही लेवल दिया जाता था, एक अलग ही लेवल जो है वो समझा जाता था। अगरचे हम मिल्टन को जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट की वजह से, अगरचे हम मिल्टन को जानते हैं पैराडाइज रीगेन्ड की वजह से, लेकिन अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि ये इंग्लैंड में इंग्लिश को फिर कंपल्सरी बनाया किसने? याद रखिएगा, कोई भी लैंग्वेज तब तक फ्लोरिश नहीं करती जब तक उसको पैट्रोनेज नहीं दी जाती है। आपकी उर्दू जो है वो पैट्रोनेज इसको मिली तो ये उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। आज कोई स्टेट अपनी लैंग्वेज को पैट्रोनेज देना बंद कर दे, nobody is going to talk, nobody is going to use that language. So
इंग्लिश जो है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है हेनरी 7 और 8 के टेन्योर में। हेनरी 7 एंड हेनरी 8। अभी हेनरी 7 और 8 की क्या कहानी है, इसके बारे में अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये समझ लीजिए कि इनके टेन्योर में आके इंग्लिश को कदरे इज्जत मिलना शुरू हो गई और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऑफ स्टेट के तौर पर सामने आई। सो अब हमारे पास जो है ये समझ में, हमने ये सारी कहानी समझने के बाद समझ लिया कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश जो था वो बेसिकली आगाज में एक अमेलगमेशन था, एक मिक्सचर था, एक खिचड़ी से पकी हुई थी। वो किस तरह से, हमने ये देखा कि केल्ट्स और गेल्स थे, उसके बाद जो है वो केल्ट्स और गेल्स के बाद हमारे पास रोमन्स आए थे। रोमन्स ने आने के बाद क्या किया था, रोमन्स ने आने के बाद अपनी लैटिन दी, लेकिन उसके बाद जब जर्मैनिक ट्राइब्स आए, एंगल्स आए, सैक्सन्स आए, ज्यूट्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको निकाल दिया इस लैंग्वेज को, और उन्होंने एक नई लैंग्वेज दी। एंगल्स ने अपना डायलेक्ट दिया जिसे हम एंग्लिश के नाम से जानते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंग्लिश से हमारे पास इंग्लिश जो है वो बनता चला गया। और इस इंग्लिश में ये बताना भी जरूरी है कि जर्मैनिक ट्राइब जो थे, दूसरे ट्राइब्स तो आते थे चले जाते थे, जर्मैनिक ट्राइब जो हैं ये वहीं पे सेटल्ड हो गए थे, ये वहीं पे रुक गए थे। जैसे आपसे मैं मेंशन कर रहा था कि पर्शिया से जब हमारे मुस्लिम जो हैं वो आए, तो मुस्लिम जो है वो आने के बाद इंडिया के अंदर स्टे कर लिया उन्होंने। इंडिया के अंदर जो है वो वहीं पे रुक गए, और वहां पे आज भी जो है वो मुस्लिम्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भी इवन ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं दे आर देयर इन इंडिया। तो इसी तरह से ये जो जर्मैनिक ट्राइब थे, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर स्टे कर लिया, अब ये वहीं पे रहना शुरू हो गए। जब आप किसी जगह पे स्टे करते हैं तो आप वहां पे क्या देते हैं, आप अपना कल्चर देते हैं। आप वहां से क्या लेते हैं, आप उनका कल्चर लेते हैं। ओके जी। सो यू गो टू कॉन्सेप्ट, you gave the, you gave you they gave their culture to India and they adopted the culture of those people. So इसी तरह से जर्मैनिक ट्राइब जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर दे गिव देयर कल्चर एंड दे अडॉप्टेड देयर कल्चर। सो ये हमारे पास एक स्टोरी थी। यस एहसान, ये हमारे पास स्टोरी थी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की। अभी हमने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को समझा कि लैंग्वेज हमारे पास आई कैसे। अब हमने ये समझना है 450 से लेके 1066 तक जो टेन्योर ओल्ड इंग्लिश कहलाता है वो कैसा है, उस टेन्योर में ऐसा क्या हुआ था कि इसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। सो इसमें हमने अभी जो है वो समझना है। जो कुछ मेरे सामने है मैं इसको आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। जिस लिंक को आपने ज्वाइन करते हुए पहला सेशन ज्वाइन किया था, उसी लिंक को ज्वाइन करते हुए आप जो है वो दोबारा इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। ये सेशन अभी कुछ ही सेकंड बाद खत्म हो जाएगा। आप दोबारा आएंगे इसी स्क्रीन पे, उसी तरह से ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से एंग्लो सैक्सन से ऑनवर्ड्स जो है वो कहानी चलती है, यानी कि 450 से ऑनवर्ड्स हमारी स्टोरी किस तरह से प्रोसीड फर्दर करती है। सो 450 से ऑनवर्ड्स हमारा जो टेन्योर है हम उसको डिस्कस करेंगे, और हम इसको जो है वो दोबारा